Hello everyone, this is Professor Amit Mahajan, and here I'm going to discuss some GST amendments for December 2021 examination. This video is applicable for CA and CMA students who are appearing for December 2021 attempt. Okay, so there are quite a lot of amendments in this attempt in GST specifically, but don't worry, we will cover each and every amendment one by one. Let's get started with the amendments part. The first amendment which you have, that is in input tax credit. उसके पहले जो चैप्टर्स है, there are absolutely no amendments in those chapters. सीधा आजा input tax credit पे. Okay, input tax credit का first amendment is, before understanding that, I'll give you a brief background of that. There is one supplier and there is one recipient. Say supplier is providing some kind of service to the recipient. Okay, so of course, since supplier is providing the service, supplier will also issue one invoice to the recipient. तो वो invoice value है 4 lakh rupees. Since invoice has been issued, can I say supplier will also charge the GST on that? Absolutely yes. Supplier will also charge GST on that. For example, 10% is the GST rate. तो आता है इधर 40,000 rupees. 40,000 rupees का पूरा invoice मिल गया recipient को. Now, recipient will have to make a payment of this invoice to the supplier. कितने का payment करेगा? Recipient will make a payment of rupees 4,40,000. समझो कर दिया रेसिपिएंट ने ऑन टाइम 4,40,000 का पेमेंट कर दिया. इधर तक ट्रांजैक्शन ओवर, पैसा मिल गया सप्लायर को. Now it is supplier's responsibility. To file GSTR1 for his outward supplies. Perfect. जो मुझे उसने सप्लाई किया उसके लिए GSTR1 भरना पड़ेगा by the supplier. Now, since he is filing GSTR1, since he is putting an entry of Amit Mahajan in his GSTR1, in my GSTR2A, it will get auto-populated. It will get auto-populated and I will be able to claim the credit of the 40,000 rupees in my GSTR3B. But can I say, since he is filing GSTR1 in my GSTR2A, it is getting reflected as credit, and since it is getting reflected in my GSTR2A, I can claim that credit in my GSTR3B. Absolutely yes. But sir, अगर GSTR1 सप्लायर ने फाइल ही नहीं किया तो क्या? अगर GSTR1 अगर सप्लायर ने फाइल ही नहीं किया तो क्या? तो of course in my GSTR2A the credit will not get reflected, and since it is not getting reflected in my GSTR2A, I cannot claim that credit in GSTR3B. तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना. मैंने तो 4,40,000 सबका पेमेंट कर दिया था, 40,000 का तो मैंने टाइम पे पेमेंट कर दिया था. तो इसीलिए बीच में एक अमेंडमेंट आया था और अमेंडमेंट ने उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि ठीक है, इन दिस केस even though it is not getting reflected in your GSTR2A, but still you can get some credit in your GSTR3B. तो कितना क्रेडिट था? तो हम लोग ने देखा था वो पूरे महीने का व्हाट इज द एलिजिबल क्रेडिट यू फर्स्ट आइडेंटिफाई. व्हाट इज द एलिजिबल क्रेडिट? वो एलिजिबल क्रेडिट का 10% टू कंप्यूट और द एक्चुअल ITC विच एवर इज लोअर. इतना तुझे क्रेडिट मिलता था बेसिस द प्रीवियस लॉ. पर सर अमेंडमेंट क्या आया है? आई विल एक्सप्लेन यू द अमेंडमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. आई हैड डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इन द क्लास, दैट्स व्हाई आई टुक द सेम एग्जांपल हियर. Now consider this, that the suppliers are 3 suppliers, A, B and C. Recipient is Amit Mahajan. A is providing some service and for that he has charged 5 lakh rupees as the invoice amount and उस पे 90,000 rupees उसने GST चार्ज किया. मतलब टोटल इनवॉइस वैल्यू आया 5,90,000 का. Point number B, supplier number B has given the invoice of 2 lakh rupees plus 36,000 का GST. मतलब टोटल इनवॉइस वैल्यू है 2,36,000 का. And party number C, that is supplier number C, has given some services and for that he has raised the invoice for 3 lakh rupees, but उसके साथ साथ उसने क्या ऐड किया? 54,000 का GST ऐड किया, which means 3,54,000 उसने इनवॉइस में डाल दिया. Now, as you know that I am a good person, मैं अच्छा आदमी हूँ, इसीलिए मैंने तीनों का पेमेंट ऑन टाइम किया. मतलब 5,90,000 का पेमेंट ऑन टाइम किया, 2,30,000 का पेमेंट ऑन टाइम किया एंड 3,54,000 का पेमेंट ऑन टाइम किया. Perfect. This transaction is closed now. Now it is the responsibility of the suppliers A, B and C to file GSTR1 on time.
Why is this mandatory? Why is this required that they should file the GSTR1 on time? बॉस आंसर बहुत सिंपल है. उन्होंने GSTR1 फाइल किया ना, मेरे GSTR2 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. उन्होंने मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ABC ने GSTR1 फाइल करना चाहिए. तो ए बहुत अच्छा आदमी है, ए ने GSTR1 फाइल किया, परफेक्ट, एक नंबर. अमित महाजन के GSTR2 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा 90,000 का क्रेडिट. सप्लायर नंबर बी ने GSTR1 फाइल किया, एक नंबर, अमित महाजन के GSTR2 में 36,000 का क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाएगा. बट चालाक निकला तो सप्लायर नंबर सी. सप्लायर नंबर सी ने क्या किया? सप्लायर नंबर सी ने GSTR1 भरा ही नहीं बाय XYZ रीजंस. उसके जो भी कुछ रीजन रहेंगे, मुझे क्या उसका. सप्लायर सी डिड नॉट फाइल GSTR1. इसके वजह से हुआ क्या? मेरे GSTR2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ ना बॉस. तो मेरे GSTR2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ मतलब मैं 3B में नहीं ले सकता? एब्सोल्युटली यस. तो इसका ही तो मैंने गवर्नमेंट को जाके तभी बोला था कि गवर्नमेंट व्हाट इज दिस? I have paid the entire amount of 54,000 and you're not allowing me to take the credit of 54,000. Why? Because he did not file the GSTR1. ये तो गलत है ना. इसीलिए गवर्नमेंट ने मुझे एक सोल्यूशन दिया था, एक काम कर, वो मैंने कहा टोटल एलिजिबल क्रेडिट निकाल. नाउ सर व्हाट इज एलिजिबल क्रेडिट? एलिजिबल क्रेडिट इज वो महीने में GSTR1 जिन्होंने फाइल किया था और वो तेरे GSTR2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो तेरा एलिजिबल है ना, मतलब उस सब कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं. तो इन माय एग्जांपल वॉट एवर क्रेडिट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम A and B, कैन आई से दिस इज एलिजिबल क्रेडिट बिकॉज दे हैव फाइल्ड द GSTR1. यस. सो A का एलिजिबल क्रेडिट इज 90,000 एंड B से आया हुआ एलिजिबल क्रेडिट इज 36,000. बट C का मुझे एलिजिबल क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं ना, बिकॉज ही डिड नॉट फाइल GSTR1. दैट्स व्हाई नो एलिजिबल क्रेडिट फॉर मी. सो टोटल एलिजिबल क्रेडिट इज 1,26,000. तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग ने पढ़ा दैट यू विल गेट द, इवन दो GSTR1 इज नॉट बीन फाइल्ड बाय C, बट स्टिल वो जो मैंने पैसा भरा है 54,000 का, उसका थोड़ा सा पार्ट मिलने का मुझे चांस है एज क्रेडिट. बट वो थोड़ा सा अमाउंट कंप्यूट कैसे करना है? तो उन्होंने बोला एक काम कर, यू कंप्यूट 10% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट और द एक्चुअल क्रेडिट विच एवर इज लोअर. अब तक हम ऐसे कर रहे थे. मतलब क्या करूं मैं? 1,26,000 का 10% निकाल. 1,26,000 का 10% कम्स टू 12,600. मतलब अब तक मुझे कितना क्रेडिट मिलता था? अब तक मुझे मिलता था 12,600 और द एक्चुअल क्रेडिट दैट इज 54,000. ये देखो इधर 54,000 विच एवर इज लोअर, मतलब मुझे अब तक मिल रहा था 12,600 का क्रेडिट विच एवर इज लोअर. तो आई कुड टेक दिस क्रेडिट हियर एंड आई कुड टेक दिस क्रेडिट ऑफ 12,600 along with that 1,26,000. ये अब तक का प्रोविजन था. सर अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट है ये 10% में, बाकी सब कुछ एवरीथिंग विल रिमेन द सेम. ये जो 10% है इट विल बी रिड्यूस्ड टू 5%. It has been reduced to 5% rather. ये जो 10% है वो हो गया है 5%. मतलब the answer is going to be 5% of the eligible credit. मतलब कितना होता है? 5% of the eligible credit comes to 6,300. So 6,300 or 54,000, whichever is lower, the amount comes as 6,300. So मुझे 54,000 में से 54,000 मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है, बट उसका मुझे एक छोटा सा प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिल रहा है, दैट इज योर 6,300. एंड द अमेंडमेंट इज 10% का उन्होंने 5% किया. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द एंटायर कंसेप्ट वंस अगेन, so that सिर्फ अमेंडमेंट डिस्कस किया ऐसा नहीं होगा. you know it is a kind of revision for you of this entire concept. I hope you are clear with the first concept which you discussed about the eligible credit और कितना तुझे क्रेडिट मिलना चाहिए even though GSTR1 has not been filed by the supplier. Perfect. This is your amendment number 1. ये तेरा इधर कंप्लीट हो जाता है. जिधर अमेंडमेंट है उधर मैंने 10% माइनस करके इधर 5% डाल दिया. Absolutely right. Okay. Now I'll move on to the next amendment, that is, if any debit note has been issued in connection with any invoice, if any debit note has been issued in connection with any invoice, date of debit note shall be taken into consideration for the purpose of determining the time limit and not the date of invoice to which it relates. Sir, कुछ नहीं समझा? No problem. I will explain you with the help of this example. See, you have received one invoice. Okay, you have received one invoice and on that invoice you have paid the tax also. You have received the invoice. मुझे समझा 1 लाख का invoice है, 18,000 GST उसने charge किया है. So I have paid 1,18,000 to the supplier. Okay, now
दे हैव गिवन सर्टेन टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी। ये जो आईटीसी है ना मेरा 18,000 का, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी? मैं कभी भी 7 साल के बाद भी अवेल कर सकता हूँ क्या? नाउ आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ अवेलमेंट। अवेलमेंट का मीनिंग आई होप यू नो, 3B में लेना मतलब अवेलमेंट। ओके, नाउ टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, उन्होंने डेट बोला था दैट ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या? फाइनेंशियल ईयर चालू है 1920, 1920 में मुझे एक इनवॉइस मिला, इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज था, मैंने इनवॉइस का अमाउंट अलॉन्ग विद जीएसटी का अमाउंट दोनों पे कर दिया, समझ 1920 में। तो अगर वो 1920 का इनवॉइस होगा तो मेरे पास वो जो 18,000 का मैंने जीएसटी पे किया वो अवेल करने का टाइम लिमिट कब तक है? 2021 का जो सितंबर आता है ना, उसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। 2021 फाइनेंशियल ईयर का जो सितंबर मंथ आएगा उसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, that is 20th of October. Can I say that? Absolutely, 20th of October of 2021 will be the date, will be the first date you should consider for identifying the time limit for availing ITC. Okay, this is your first date. Second date क्या है? और date of filing of the annual return, actual date of filing of the annual return. As you know, financial year 1920 होगा, financial year 1920 का due date of filing the annual return is 31st of December 2021. 31st of December 2021, पर उसके पहले भी you can file the annual return. तो उन्होंने वही बोला है that you have two dates for identifying the time limit for availing ITC. What is that? Due date of September return of the next financial year, बराबर है, 1920 फाइनेंशियल ईयर होगा तो 2021 के सितंबर मंथ का जो ड्यू डेट है, सितंबर मंथ की रिटर्न का ड्यू डेट, दैट इज 20th of October, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर, उधर तक मेरे पास टाइम लिमिट होगा फॉर अवेलिंग द आईटीसी। बट एक बार में वो टाइम लिमिट क्रॉस किया, इफ आई मिस दैट डेडलाइन, देन इन दैट केस माय आईटीसी विल लैप्स। ये नॉर्मल है आईटीसी क्लेम करने का, मैंने प्रोविजन बता दिया। Now earlier what used to happen, I will tell you this. Now there is one debit note which has been issued to the previous invoice, मतलब एक invoice raise हुआ था, उसके related एक debit note भी raise हुआ है। Now I will tell you, ITC related to the debit note, उसका क्लेम करने का टाइम लिमिट क्या था? द लास्ट डेट वाज लिंक्ड टू द लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग आईटीसी ऑफ द इनवॉइस टू विच सच डेबिट नोट रिलेट्स। नाउ इसका क्या मतलब होता है? सी, say for example invoice has been raised on 7/1/2021, 7/1/2021 को invoice raise हुआ, that is financial year 2021. yes, so last date of claiming ITC क्या आता है? ये नॉर्मल इनवॉइस का, मतलब इनवॉइस मुझे मिला, इनवॉइस का मैंने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद कभी पेमेंट किया तो समझ 7/1 को ही मैंने पेमेंट किया, तो वो क्लेमिंग आईटीसी, फॉर क्लेमिंग आईटीसी व्हाट इज द लास्ट डेट? लास्ट डेट इज, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया दैट सितंबर 2021 का रिटर्न ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न का डेट, विचएवर इज अर्लियर, मतलब इन दिस केस सितंबर 21 का रिटर्न फाइल किया ऑन 19th of October एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 का एनुअल रिटर्न का भी फाइल किया, दैट इज 15th of November, विचएवर इज अर्लियर का डेट क्या आता है? विचएवर इज अर्लियर का डेट आता है 19/10/2021। मतलब ये जो इनवॉइस रेज किया था ऑन 7/1/2021, मैंने नहीं, मेरे पे जो इनवॉइस रेज किया था और उस पे मैंने जो टैक्स भरा रहेगा, जीएसटी भरा होगा, तो इसका मैं आईटीसी कब तक क्लेम कर सकता हूँ? ऑन और बिफोर 19/10/2021 के पहले मैं ये आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ और आईटीसी अवेल कर सकता हूँ अगर। ओके, तो इधर तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अभी समझो ये जो इनवॉइस रेज हुआ था 7/1/2021 को, उसके रिलेटेड एक डेबिट नोट इशू हुआ ऑन 1/9/2021। वापस देखा था डेट, देख ले, इनवॉइस डेट है 7/1/2021 एंड डेबिट नोट इज इशूड ऑन 1/9/2021, दैट इज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दोस्त देख, फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है, invoice was raised in financial year 2021 and debit note is issued of the same invoice in financial year 21-22। तो इसका लास्ट डेट क्या देखते थे? इसका लास्ट डेट, डेबिट नोट का डेट भूल जा, इसका लास्ट डेट देखने के लिए, इसका लास्ट डेट देखने के लिए डेबिट नोट का डेट भूल जा। मतलब डेबिट नोट जब इशू किया, समझो डेबिट नोट इशू किया तो कहने से वो डेबिट नोट पे मैंने और भी पेमेंट किया होगा, वो डेबिट नोट पे मैंने और भी टैक्स पे किया होगा, तो मैंने और भी टैक्स पे किया तो कहने से मुझे और भी टैक्स का अपना जीएसटी क्रेडिट मिलना चाहिए।
यस, पर वो जीएसटी क्रेडिट अवेल करने का टाइम लिमिट क्या है? वो जीएसटी क्रेडिट अवेल करने का टाइम लिमिट क्या है? मुझे इनवॉइस का जीएसटी क्रेडिट तो समझा कि क्या करना है, लास्ट डेट ऑफ सितंबर, वो सब मैंने देखा, बट ये जो डेबिट नोट के हिसाब से, डेबिट नोट की वजह से जो मैंने टैक्स पे किया, उसका क्रेडिट, जो क्रेडिट है उसका अवेल कब तक कर सकता हूँ, वो तो हम लोग ने बात की नहीं किया था. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन. अर्लियर द लास्ट डेट वाज लिंक्ड टू द ओरिजिनल इनवॉइस. Last date of availing the ITC for the taxes paid on debit note was linked to the original invoice. मतलब जो ड्यू डेट ऑफ क्लेमिंग द आईटीसी ओरिजिनल इनवॉइस का है, वही ड्यू डेट बन जाएगा डेबिट नोट के जो टैक्स पे किया ना, वो क्लेम करने का ड्यू डेट, लास्ट डेट. सो बेसिकली लास्ट डेबिट नोट इशू किया, उस पर मैंने टैक्स पे किया, उसका वो टैक्स पे किया है फॉर क्लेमिंग, फॉर अवेलिंग द आईटीसी ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्स. व्हाट इज द ड्यू डेट? डोंट सी द डेट ऑफ अ डेबिट नोट, जस्ट सी द डेट ऑफ द इनवॉइस. वो इनवॉइस का लास्ट डेट क्या है फॉर क्लेमिंग द आईटीसी, दैट विल बिकम द लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग द आईटीसी ऑफ द डेबिट नोट ऑल्सो. सो इन दिस केस 1/9/2021 को डेबिट नोट इशू हुआ था, एंड द लास्ट डेट विल बी लिंक्ड टू द ओरिजिनल इनवॉइस. ओरिजिनल इनवॉइस का लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग आईटीसी क्या था, अभी हम लोग ने डिस्कस किया, इट इज 19/10/2021. 19/10/2021, तो वो सेम बन जाएगा डेबिट नोट के आईटीसी क्लेम करने का लास्ट डेट. डेबिट नोट के आईटीसी क्लेम करने का लास्ट डेट वो ही बन जाएगा. मतलब द डेट ऑफ डेबिट नोट इज इररेलेवेंट. द डेट ऑफ डेबिट नोट इज इररेलेवेंट, इट विल बी लिंक्ड टू द ओरिजिनल इनवॉइस. ये पहले का प्रोविजन था, पर सर अभी अमेंडमेंट क्या आया, अभी के अमेंडमेंट में उन्होंने बोला देयर इज अ डी लिंकिंग ऑफ डेबिट नोट एज वेल एज ओरिजिनल इनवॉइस. I will delink the debit note and the original invoice, which means debit note का date. What was the debit note का date? Debit note का date was 1/9/2021. मतलब it was falling in financial year 21-22. Original invoice was falling under financial year 2021. पहले डेबिट नोट का डेट we were ignoring, और हम लोग क्या करते थे, लिंक करते थे ओरिजिनल इनवॉइस के साथ, और उसका ही ड्यू डेट पकड़ा जाता था डेबिट नोट के अंदर जो मैंने टैक्स पे किया है वो आईटीसी क्लेम करने के लिए. इधर लास्ट डेट टू बी डिटरमाइंड सेपरेटली, इधर जो होगा वो लास्ट डेट टू बी डिटरमाइंड सेपरेटली. नाउ मुझे इसका तो मालूम है कि लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी क्या है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021 का लास्ट डेट क्या है, हम लोग ने ऊपर देखा, इट इज 19/10/2021. करेक्ट है. नाउ ये जो डेबिट नोट है, वो डेबिट नोट तो इशू हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ना, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में डेबिट नोट इशू हुआ है, तो उसको और एक साल मिल जाएगा, उसको और एक साल मिल जाएगा. मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, इसका मतलब समझो ये दूसरा इनवॉइस ही है. अगर नॉर्मल इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 21-22 में होता तो तुझे कितना टाइम मिलता, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर का ड्यू डेट और डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. मतलब इधर मैंने नीचे लिखा है, देखो, लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग आईटीसी, दिस इज फॉर द डेबिट नोट. लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग आईटीसी इज सितंबर 2022 का रिटर्न, सितंबर 2022 का रिटर्न, बिकॉज देख फाइनेंशियल ईयर 21-22 में डेबिट नोट जो इशू हुआ है वो हम लोग एक अलग इनवॉइस ही मानेंगे, तो वो 21-22 में डेबिट नोट आया था, इसीलिए वो फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 22-23 का जो सितंबर मंथ आएगा, सितंबर मंथ का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द GSTR 3B. So that is September 22 return is filed on समझो 15th of October 2022. एंड फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक एनुअल रिटर्न फाइल किया ऑन 1st of November 2022. मतलब जो मैंने टैक्स डेबिट नोट के थ्रू पे किया, वो टैक्स का अवेलमेंट करने का टाइम लिमिट मुझे एक साल ज़्यादा मिल गया, एक साल ज़्यादा मिल गया, दैट इज 15/10/2022 और 1/11/2022 विच एवर इज अर्लियर, दैट इज 15/10/2022. और लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग आईटीसी फॉर इनवॉइस इज द सेम, नो, ये तो हम लोग ने अभी डिस्कस किया था, दैट इज सितंबर 2021 का रिटर्न फाइल कभी हुआ था, 19th of October ना. एंड एनुअल रिटर्न कभी फाइल हुआ था 15/11, whichever is earlier is
19/10/2021 and this is your amendment. The amendment is basically पहले था linked the debit note was linked to the original invoice. तो जो original invoice का ITC claiming का ड्यू डेट था वही ड्यू डेट बन जाएगा डेबिट नोट के ITC के क्लेमिंग के लिए. बट अभी ऐसा नहीं है. अभी डेबिट नोट एंड ओरिजिनल इनवॉइस आर डीलिंक्ड. ओरिजिनल इनवॉइस जो साल में होगा वो साल का जो भी कुछ टाइम लिमिट होगा उसके लिए वो एप्लीकेबल होगा एंड डेबिट नोट का जो साल में वो डेबिट नोट इशू हुआ होगा उसके वो साल के लिए जो भी तेरा टाइम लिमिट होगा फॉर क्लेमिंग द ITC इट विल बी इंडिपेंडेंट. सो ओरिजिनल इनवॉइस एंड डेबिट नोट आर independent, those are delinked now. And this is the amendment which you have. This is the second amendment of input tax credit. I hope you are clear with this amendment. I have tried to cover this particular point as comprehensively as possible for you, right? Okay, let's move ahead with the next amendment, that is restriction on use of amount available in the electronic credit ledger, which means you have certain amount in the electronic credit ledger and whatever outward tax liability you will generate, you will be able to claim that electronic credit ledger ka balance against your outward tax liability. This is simple, but they have put certain restrictions on electronic credit ledger का utilization. तो वो restrictions क्या है? First of all, restrictions क्यों लाए वो पहले समझते हैं. See, during the COVID times, government was not getting money from the taxpayers. इसके लिए उनको पैसा चाहिए. तो पैसा चाहिए, उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला? रूल नंबर 86B डाल के. रूल नंबर 86B में लिखा क्या है? See, I will tell you first and then I will go to the example. I have one good example to explain you. You have 100 rupees as your in your electronic credit ledger. 100 rupees, 120 rupees है in your electronic credit ledger, and your outward tax liability is 100. So what will you do? You have input tax credit of 120 and outward tax liability of 100. You will set off that 120 against 100. No? Matlab I have sufficient ITC credit which I can set off. So do I have to pay any kind of tax to the government? No, I am not required to pay any kind of tax to the government because I have sufficient ITC to claim. But उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला there are certain specific taxpayers. उनको ही ये रूल applicable होता है. रूल नंबर 86B. उन्होंने बोला even though you have electronic credit ledger में balance, even though you have balance in the electronic credit ledger, but still you cannot utilize the entire electronic credit ledger का balance. Which means they said that out of that 100 rupees ka outward tax liability, you should at least pay 1% of tax. You should pay at least 1% of tax and 99% का you can avail the input tax credit. हम लोग को कुछ भी problem नहीं है. But even though you have credit in your electronic credit ledger, it does not matter to the government. Government ने बोला कि एक काम कर, जो outward tax liability है उसका please 1% तो government को pay कर, so that government will receive some amount of money. तो सर ये तो taxpayer के against है rule. Yes, absolutely yes, ये taxpayer के definitely against है. इधर the logic is very simple that government wants money. 99% तक you can avail the ITC, but 1% तुझे पे करना ही पड़ेगा to the government. ये उन्होंने बोला है रूल नंबर 86B में. Now we will understand this with the help of an example. As you know, and as I always believe in understanding the concepts by understanding the examples, we will follow the same thing. Rule number 86B, the restriction is what? Restrictions on claiming of ITC. Restriction is 99% of the output tax liability. Restriction is you can avail or claim the ITC only to the extent of 99% of the output tax liability. In simple words, pay minimum 1% of the output tax liability in cash. बाकी तेरे पास जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उतना यूटिलाइज कर सकता है, बट 1% तुझे पे करना ही पड़ेगा. 1% मुझे पे करना ही पड़ेगा. ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं. This is the month of June. Your outward tax liability is 10 lakh rupees. Outward tax liability is 10 lakh rupees. I will change this outward tax. Outward tax liability is 10 lakh rupees and you already have ITC of 12 lakh rupees. तो सिंपल है. बिफोर 1/1/2021 हम लोग क्या करते थे? 1/1/2021 के पहले my outward tax liability was 10 lakh rupees
एंड आईटीसी आई हैव सफिशिएंट आईटीसी नो 12 लाख का, इसलिए मैं पूरा का पूरा उसमें डिडक्शन ले लेता था. एंड माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना आता है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आता है 0 अंडा, कुछ नहीं, because I have sufficient ITC. But after this amendment, that is on or after 1/1/2021, मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 lakhs में से एटलीस्ट 1% पे करना पड़ेगा, which means 10 lakhs का 1% कितना आता है? 10 lakhs का 1% आता है 10,000 rupees. मतलब I will get the benefit to the extent of 9,90,000, but 10,000 rupees तो मुझे पे करना ही पड़ेगा even though I have ITC. इसलिए उन्होंने फॉर्मूला बनाया, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी इज 10 lakhs. और आईटीसी में कैसे कंप्यूट करूंगा? एक्चुअल आईटीसी और 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी whichever is lower. Whichever is lower, actual कितना है? 12 लाख and 99% of output tax liability की 9.9 lakhs, so I can claim the ITC only to the extent of 9.9 lakhs, and I'll have to pay output tax liability of 10,000 rupees to the government, so that government को थोड़ा पैसा मिलेगा and government will be happy. This is your third amendment here. This is your third amendment here. Restrictions on use of amount available in electronic credit ledger. I will read this. This is applicable with effect from 1/1/2021. A new rule 86B has been inserted in the CGST rules to restrict the amount available in electronic credit ledger, which is a registered person can use to discharge his output tax liability to 99% of such tax liability in cases where value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceeds 50 lakh rupees. मतलब ये rule number 86 भी कभी applicable होगा only when the taxable supply except for exempt supply and zero rated supply. Taxable supply except for exempt supply and zero rated supply is more than 50 lakh rupees. Is more than 50 लाख रुपीस, तभी ये एप्लीकेबल हो जाएगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा. इसीलिए मैंने बोला था रूल नंबर 86B इज एप्लीकेबल टू द स्पेसिफिक टैक्स पेयर्स. तो ये स्पेसिफिक टैक्स पेयर्स कौन है? जिनका टैक्सेबल सप्लाई एक्सेप्ट फॉर एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई, वो कंसिडर नहीं करेंगे टैक्सेबल सप्लाई कंप्यूट करते हुए. whatever amount you will get as taxable supply, वो अगर 50 लाख से ऊपर रहेगा, then I will have to apply rule number 86B, and even though I have the sufficient credit to utilize, but still I will not be able to utilize that credit. I will have to pay 1% tax to the government. तो एग्जाम सप्लाई मतलब क्या होता है? छोटा सा मैंने उधर एक्सप्लेनेशन डाल दिया फॉर रिवीजन पर्पस. एग्जाम सप्लाई मतलब वो होली एग्जाम हो सकता है, वो नील रेटेड सप्लाई भी होता है, एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी हम एग्जाम सप्लाई ही बोलते हैं. एंड जीरो रेटेड सप्लाई मतलब इफ आई एक्सपोर्ट देन दैट सप्लाई इज नोन एज जीरो रेटेड सप्लाई, एंड इफ आई एक्सपोर्ट और मे बी इफ आई सप्लाई टू SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर उधर भी मैंने अगर कुछ सप्लाई किया तो वो जीरो रेटेड सप्लाई में कैटेगराइज हो जाता है. परफेक्ट है. आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर. Great. This rule overrides all the other rules. ये है सबका बाप. ये है सबका बाप. This rule overrides all the other rules. जो rules है which are contradicting, वो सब we will not follow. We will follow rule number 86. वो है सबका बाप. Okay. It implies that a registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99. मतलब in excess of 99% of such tax liability, I cannot utilize that credit. In cases where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceeds 50 lakhs. और जो नीचे एग्जाम्पल दिया है exactly मैंने वो एग्जाम्पल डिस्कस किया, वैसा ही एग्जाम्पल है. You can read this example, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. Okay, then there are certain exceptions to this. Exceptions एकदम अच्छे से देख ले. This restriction shall not apply in the following cases. मतलब ये अच्छी बात है या बुरी बात है? टैक्स पेयर के लिए ये अच्छी बात है या बुरी बात है? रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. मतलब 1% का जो पेमेंट करना है वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. मतलब यू कैन अवेल द एंटायर क्रेडिट. ये एक्सेप्शन जो है विच इज अ गुड थिंग फॉर द टैक्स पेयर. इट इज अ गुड थिंग फॉर द टैक्स पेयर बिकॉज ये एक्सेप्शन है एंड वो रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा उनके लिए 99% का. तो ऐसे कौन ये चतुर लोग हैं उनको ये पूरा प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है? वेरी सिंपल, एक बार अच्छे से रीड करना. आई विल रीड इट फॉर यू ऑल्सो. वेयर द सेड पर्सन, मतलब जो पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट पर्सन प्रोप्राइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर्स
whole time directors, member of managing committee of associations or board of trustees as the case may be, who have paid more than 1 lakh as income tax in each of the last 2 financial years. हम लोग जिसका बात कर रहे हैं उन्होंने अगर इनकम टैक्स फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स पे किया है for 1 lakh each, if that person has paid the income tax of more than 1 lakh rupees in each of the 2 preceding financial years, then in that case उसके लिए ये applicable नहीं होगा, उसके लिए ये प्रोविजन और रिस्ट्रिक्शन आई वुड से एप्लीकेबल नहीं होगा. ये तेरा पॉइंट नंबर 1 है. पॉइंट नंबर 2, where the registered person has received a refund of more than 1 lakh in the preceding financial year on account of unutilized ITC in case of zero rated supplies made without the payment of tax on inverted duty structure. You can ignore this for the time being. सिर्फ इधर तक ध्यान दे that अगर कौन से भी registered person को in the previous financial year, if that person has received the refund of 1 lakh rupees or I would say more than 1 lakh rupees, then this entire restriction will not be applicable to that particular registered person. This is your point number 2 and B in this case. I hope इधर तक क्लियर है. मैं जाता हूँ पॉइंट नंबर C पे, where the registered person, एकदम ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर C, where the registered person has discharged his liability towards output tax through the electronic credit ledger for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year. Ma kasam. What is this? I will read this again. Try to analyze. I'm going to tell you with an example. Don't worry, but एक बार try तो कर अपने end से. Where the registered person, ऐसा कौन सा registered person who has discharged his liability towards output tax थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब उसने क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल नहीं किया. ही डिड नॉट यूज द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब आईटीसी उसने अवेल नहीं किया. ही यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू मेक अ पेमेंट फॉर एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली up to the said month in the current financial year. मतलब उसने कुछ तो पेमेंट किया है, ऐसा कुछ इधर तक हम लोग को समझा. We'll understand this with the help of an example. ये देख, इधर मैंने ये कवर किया है. I am sitting in December 2020 right now. जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही देख ले अभी. I am sitting in December 2020 right now. Perfect है. मेरा December 2020 का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज 17 lakh rupees. 17 lakh rupees is the output tax liability of December 2020. ITC is 20 lakh rupees and output tax liability 17 lakh rupees. Okay. Now, do I fall under this rule 86B? ये identify करने के लिए, do I fall under this rule 86B? ये identify करने के लिए उन्होंने एक थोड़े exceptions दिए. Just let's see whether I'm falling under that exception or no. तो exception में क्या बोला? तू दिसंबर में खड़ा है, उसके पहले के जो मंथ्स थे ना फाइनेंशियल ईयर के, मतलब फ्रॉम अप्रैल 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक, अप्रैल 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक क्यूमुलेटिवली तू मुझे बता व्हाट इज द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यू हैव पेड. ओके, तो मैंने कंप्यूट किया. अच्छा, मेरा टोटल अप्रैल 20 से लेके दिसंबर 20 तक द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वाज 1.80 करोड़. आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वाज 1.80 करोड़. तो गवर्नमेंट ने मुझे पूछा, अच्छा ओके, तू मुझे बता उसमें से तूने आईटीसी कितना अवेल किया है 1.80 पे करते करते, और तूने पूरा 1.80 आईटीसी में से तूने पेमेंट किया है. तो मैंने बोला नहीं, मुझे जितना याद है तो 1.80 तो मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी था, और उसमें से 1.50 करोड़ जो है ना वो मैंने आईटीसी के थ्रू किया, और बाकी का जो 30 लाख है वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के हिसाब से पेमेंट कर दिया. तो गवर्नमेंट ने पूछा, आर यू श्योर? मैं बोला 100%. एक बार भी देख के 1 मिनट में कंफर्म करता हूँ. तो फटाफट देख लिया मैंने, और उसके बाद में आई कंफर्म कि आई हैव पेड द टैक्स ऑफ 30 लाख रुपीज क्यूमुलेटिवली फ्रॉम अप्रैल टिल दिसंबर 2020. व्हाई दिसंबर? बिकॉज आई एम सिटिंग इन दिसंबर राइट नाउ. ओके, नाउ टोटल मैंने क्यूमुलेटिवली फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर टोटल टैक्स पे कितना किया? पे मतलब क्या? एक्चुअली मैंने कैश में कितना पे किया, आईटीसी के थ्रू नहीं, कैश में कितना पे किया.
So out of 1.80, I have paid the cash to the extent of 30 lakh rupees. 1.80 crore में से 30 lakhs का पेमेंट मैंने किससे किया है? कैश पेमेंट करके किया है. So basically percentage of tax paid in cash is 30 lakh rupees upon 1.80 crore, which is 16.67%. मैं बोल रहा हूँ भाई, किसको बोल रहा हूँ? गवर्नमेंट को मैं बोल रहा हूँ दोस्त, I have paid 16.67% of the output tax liability cumulatively in cash. In your exception, I am definitely falling. Why? Because in your exception, you have specifically mentioned कि if cumulatively, if you have paid more than 1%, you have paid worth more than 1%, then you will fall under that exception. मैं बोल रहा हूँ, मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ बॉस, 1% क्या मैं 16.67% पे किया, 16.67% पे किया, 1% तो किधर रह गया? तो गवर्नमेंट बोलता है तू बहुत अच्छा आदमी है, तू बहुत ही अच्छा आदमी है, 16.67% तूने पे किया है आउट ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. आई एम वेरी हैप्पी. डू वन थिंग, रूल 86B इज नॉट एप्लीकेबल टू यू. मतलब मैं दिसंबर 2020 में जो मैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करूंगा, उसमें कैन आई अवेल 20 lakhs का ITC, मतलब कैन आई अवेल द एंटायर ITC ऑफ 17 lakh rupees against 17 lakh rupees of output tax liability? You only tell me. First of all, identify kar whether I am falling under the exceptions. Yes, I am definitely falling under that exception. Why? Because I have paid more than 1% of the output tax liability cumulatively. I am falling under the exceptions, which means 86B is not applicable to me. 86B is not applicable to me, which means I can avail the entire ITC which I have. I can avail the entire ITC which I have, which means output tax liability 17 lakhs है, ITC 17 के 17 में utilize कर सकता हूँ, which means in the month of December I am required to pay zero tax because either 86B का rule is not applicable. And this is your amendment. This is your amendment. और वो amendment का एक basically एक exception का point है. Perfect है. मैं जाता हूँ ऊपर, अभी ये थर्ड कंप्लीट हो गया. अभी आई विल कम टू द डी पॉइंट. डी पॉइंट उन्होंने बोला वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज योर PSU, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, देन इन दैट केस उनके लिए भाई गवर्नमेंट के लिए 86B का है का? गवर्नमेंट खुद है तो गवर्नमेंट को खुद को बोल सकता है क्या गवर्नमेंट कि नहीं तू एक काम कर 1% पे कर? उन्होंने बोला गवर्नमेंट है, अपना ही बंदा है, एक काम कर दे, उनको एग्जेम्पशन दे देते हैं. उन्होंने एग्जेम्पशन दे दिया. अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगा, लोकल अथॉरिटी होगा एंड स्टैट्यूटरी बॉडी होगा, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फुलफिल 86B के रिक्वायरमेंट्स. ओके. बट अगर कमिश्नर और ऑफिसर को लगा कि ये रिस्ट्रिक्शन निकाल देना है तो दे कैन रिमूव इट. ठीक है, ये तेरा फोर्थ पॉइंट है. And these are the amendments which you have in input tax credit. I hope everybody is clear with all the three amendments which we discussed in this particular video. समझा कि नहीं समझा? Perfect. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर से. रजिस्ट्रेशन अंडर GST. रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में उन्होंने एक प्रोसीजर दिया था, इफ यू रिमेंबर, प्रोसीजर दिया था अंडर सेक्शन 25. तो वो प्रोसीजर में क्या बोला था कि तुझे आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है. तुझे आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है. एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 25(6)(a), 25(6)(b एंड 25(6)(c, रूल रेड विथ रूल 8(4)(a). उसमें उन्होंने बोला था कि स्पेसिफिक पर्सन्स को आधार ऑथेंटिकेशन करना रिक्वायर्ड है. ओके. रूल नंबर सेक्शन नंबर 25(6)(d) में स्पेसिफिकली ये बोला था दैट प्रोविजंस ऑफ 25(6)(a), 6(b) एंड 6(c) शैल नॉट अप्लाई टू अ नोटिफाइड पर्सन. मतलब ये जो आधार ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसीजर है, वो आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर नोटिफाइड पर्सन को एप्लीकेबल नहीं होगा. ये इधर तक ही छोड़ दिया था. नोटिफाइड पर्सन ले लो या क्लास ऑफ पर्सन ले लो, ये उन्होंने बोल के छोड़ दिया कि जो क्लास ऑफ पर्सन है जो नोटिफाई करेगा गवर्नमेंट बाद में, उनके लिए ये सेक्शन नंबर 25(6)(a), 6(b), 6(c) दैट इज फॉर अदर ऑथेंटिकेशन प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई. अभी ये नोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने, ये नीचे उन्होंने लिस्ट दिया कि ये लोगों को, ये चतुर लोगों को एप्लीकेबल नहीं होगा आधार ऑथेंटिकेशन. देख ले, तेजस्वी लोग बोलते हैं इनको, तेजस्वी लोग.
फॉलोइंग पर्सन्स हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन. कौन है ये लोग? फर्स्ट, पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. परफेक्ट, वेरी गुड. जो सिटीजन नहीं है भैया वो. डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अ पर्सन अप्लाइंग फॉर यूनिक आइडेंटिटी नंबर UIN. मैंने बोला था जो एम्बसीज में काम करते हैं उनको कभी भी GSTIN नहीं मिलता, तो उनको कभी भी GSTIN नहीं मिलता, उनको हमेशा क्या मिलता है? यूनिक आइडेंटिटी नंबर. तो बेसिकली इधर अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट है जो 2560 में बोला था कि नोटिफाइड पर्सन को एप्लीकेबल नहीं होगा, उन्होंने नोटिफाइड पर्सन को नोटिफाई कर दिया बेसिकली. 2560 वैसे के वैसा ही है, सिर्फ नेम्स आ गए कि किसको भी उसको एप्लीकेबल नहीं होगा आधार ऑथेंटिकेशन. एक नंबर. ये पूरा मैंने ऐसा ही डाला है पूरा प्रोविजन, पर सिर्फ अमेंडमेंट ये ग्रीन पार्ट जितना है उतना ही तरह अमेंडमेंट है. ओके. अभी आता है रूल नंबर 9. रूल नंबर 9 एक्सप्लेन करने के लिए आई विल गो टू द क्लासरूम नोट्स. जो क्लासरूम नोट्स में मैंने जो बताया था, यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट मोर कि एग्जैक्टली क्लासरूम नोट्स में क्या एक चार्ट बना के दिया था. वो चार्ट में मैंने ऐसे बहुत सारे डेट्स डाल के दिए थे कि विद इन 7 डेज, 3 डेज तुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. वो एक बार मैं चार्ट दिखाता हूँ. चार्ट दिखने के बाद आई विल टेल यू कि इसमें अमेंडमेंट आ गया. ये देखो, मुझे 1 मिनट देना. ये है रजिस्ट्रेशन, बराबर है. ये है रजिस्ट्रेशन, मतलब ये रजिस्ट्रेशन आएगा इधर. ओके. ये देख, इधर हम लोग ने एक डिस्कस किया था दैट अगर मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर मुझे GST का रजिस्ट्रेशन लेना है, तो देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट नंबर A एंड पार्ट नंबर B ऑफ GST RG 01 फॉर्म. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉमन पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन करना पड़ेगा एंड आई हैव टू फिल पार्ट नंबर A. पार्ट A फाइल करना पड़ेगा. पार्ट A में सब कुछ फाइल करने के बाद एक TRN जनरेट होगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर. यूजिंग दैट टेम्पररी रेफरेंस नंबर आई कैन फाइल पार्ट नंबर B, दैट इज पार्ट B. वो फाइल किया, मतलब पार्ट A पहले हुआ, TRN जनरेट हुआ, पार्ट B भी मैंने बेसिस दैट फाइल किया, उसका मुझे एक्नॉलेजमेंट मिला. अभी तेरा जो एप्लीकेशन तूने सबमिट किया ना, पार्ट A पार्ट B, दैट एप्लीकेशन विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रॉपर ऑफिसर. बराबर. प्रॉपर ऑफिसर को ट्रांसफर किया, उसके बाद उन्होंने देखा ही कैन बी सेटिस्फाइड, he can either be satisfied or he can either be not satisfied. So if he is satisfied, then within 3 working days he will have to issue the registration certificate. जब से ट्रांसफर हुआ उधर से लेके 3 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा. और अदरवाइज अगर ऑन द अदर हैंड इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द application, then in that case within 3 days he will have to send a notice and he can ask for the clarifications. If he is not satisfied with the application, he can ask for some other documents. तो ये सब टाइम पास उसको कभी करना पड़ेगा, within 3 days करना पड़ेगा. Now the time limit of 3 days has been extended to 7 days. ये 3 दिन के जगह पे 7 days हुआ है, बाकी कुछ नहीं डिफरेंस, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, एवरी डैम थिंग रिमेन्स द सेम. सिर्फ 3 दिन के जगह पे हो गया 7 दिन. 7 days, 7 वर्किंग डेज उसको सेटिस्फाइड होगा तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. एंड विद इन 7 days अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो विद इन 7 days नोटिस देना पड़ेगा. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन. 3 के जगह पे 7 हुआ अभी. परफेक्ट. ये इतना ही तरह अमेंडमेंट है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, टाइम पास किया फिर. ओके. रूल नंबर 9 में जितना मैंने लिखा है ना, shall be issued within ग्रीन में लिखा है देखो, shall be issued within 7 working days. वो जो 7 working days पहले था 3 working days, अभी हो गया 7 working days. इतना ही तेरा डिफरेंस है. ओके. ये तेरा रूल नंबर 9 है. मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना पढ़ के जा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. जो नोट्स है एक बार रीड मार के जा, तुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम में, बिंदास एकदम. प्रोवाइजो टू रूल नंबर 9(1). एक प्रोवाइजो डाल दिया. अभी वो प्रोवाइजो में क्या था मालूम एग्जैक्टली, मैं पहले तुझे बताता हूँ क्या था. देख, where a person other than those notified under section 2560 fails to undergo authentication of आधार नंबर, then अभी किसी ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, ऐसा कौन सा पर्सन है? तेजस्वी लोग, ऐसे लोग बोलते हैं तेजस्वी लोग, उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया. तो क्या होता है? द रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, बट रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन. बराबर है. उन्होंने बोला कि अगर कौन से भी रजिस्टर्ड पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, कौन से भी पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, देन रजिस्ट्रेशन ही विल गेट ओनली आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन. अभी फिजिकल वेरिफिकेशन का एक डेट डाल दिया है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन डेट है 30 डेज. जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो फिजिकल वेरिफिकेशन को प्रॉपर ऑफिसर को करना पड़ेगा विद इन 30 डेज. अगर विद इन 30 डेज अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो ऐसा माना जाएगा कि उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया,
कि उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया। ऊपर भी वैसा ही है, अगर 7 दिन में उसने सर्टिफिकेट नहीं दिया और 7 दिन में अगर सेटिस्फाइड होगा तो सर्टिफिकेट देगा, तो कितने दिन में देना पड़ेगा उसको? 7 दिन में, बराबर। ऑन द अदर हैंड उसने इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड तो 7 दिन के अंदर अंदर उसको क्या भेजना पड़ता है? नोटिस भेजना पड़ता है, एंड ही हैज टू आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशंस। उसने अगर 7 दिन में नहीं भेजा कुछ भी नोटिस, देन इन दैट केस ऐसा माना जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड। ये सर किधर लिखा है? ये सर लिखा है नीचू। सी, इफ द प्रॉपर ऑफिसर fails to take any action, then within a period of 7 working days from the date of submission of the application, in case where a person successfully undergoes Aadhaar authentication number, okay, sorry, authentication of Aadhaar number, point number 1, within a period prescribed above 30 days, in cases where a person other than the person notified under subsection 6D of 25 fails to undergo ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, मतलब 30 डेज के अंदर अंदर उसने नहीं भेजा, इधर आता है 30 डेज वापस, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन केसेस वेयर अ पर्सन डज नॉट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, and point number D, within 7 working days from the date of receipt of the clarification information or documents furnished by the applicant, the application, main point तर इधर आता है, the application for grant of registration shall be deemed to be approved। मतलब तूने अगर 7 दिन के बाद accept या reject कुछ नहीं किया, अगर 30 डेज के अंदर अंदर तूने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, then in that case, और मे भी जो एप्लीकेशन किया था उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, then in that case ऐसा on the expiry of those 7 and 30 days ऐसा माना जाएगा that registration is granted. This will be considered as deemed approval if proper officer fails to take any action within 7 or 30 days as the case may be. ये तेरा एक अमेंडमेंट था, ये इधर उन्होंने बोल दिया। इधर मेनली अमेंडमेंट याद रखना 3 का 7 हो गया है, एंड 30 डेज इन केस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। 7 days and 30 days एक्सपायर हो गए, प्रॉपर ऑफिसर डिड नॉट से एनीथिंग, इन दैट केस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 और 7 days देयर विल बी अ डीम्ड अप्रूवल, तुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ये तेरा एक पॉइंट था। आफ्टर दैट यू हैव वन पॉइंट ऑफ कैंसिलेशन बाय जीएसटी ऑफिसर ओन out of his own motion, basically on his own motion, cancellation by GST officer on his own motion, मतलब बेसिकली जीएसटी ऑफिसर को लगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए तो वो कर सकता है, बट कौन से रीजन की वजह से? तो नीचे उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला दैट वायलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ टेकिंग आईटीसी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 we had seen certain conditions कि if you want to avail the ITC, then under section 16 में जो conditions है, those conditions you have to fulfill. Second, mismatch of GSTR 1 and GSTR 3B. GSTR 1 में कुछ अलग है और GSTR 3B में अलग है। Now you tell me GSTR 1 में क्या होता है? GSTR 1 में you put the details of outward supplies, and GSTR 3B में you put the details of inward as well as outward supplies. करेक्ट? तो जीएसटीआर 3B में आउटवर्ड है ना, और जीएसटीआर 1 में भी आउटवर्ड है ना, सो डोंट यू थिंक बोथ शुड मैच बिकॉज यू आर डूइंग दिस फॉर द सेम मंथ? डेफिनेटली अगर मिसमैच रहेगा जीएसटी ऑफिसर भड़केगा, जीएसटी ऑफिसर सीधा तेरा कैंसिलेशन कर सकता है तेरे रजिस्ट्रेशन का। एंड लास्ट पॉइंट है वायलेशन ऑफ रूल नंबर 86B। अगर तेरे 86, इफ यू आर फॉलिंग अंडर 86B एंड इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग 86B कंडीशंस, तो तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। This is your point number B. Now we'll see point number C, that is suspension of registration suspension of registration under rule 21A. ऊपर क्या था सर? ऊपर तो सेम तो था। अरे भाई वो कैंसिलेशन था, नीचे सब सस्पेंशन है। Now first of all I need to tell you कि what is the difference between suspension and cancellation. Cancellation मतलब cancel रद्द, and suspension मतलब cancelled for the time being, उसके बाद तो वापस वो रिवाइव हो जाएगा, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं। ओके। पहले क्या था? वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव ऑन हिज ओन दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज लायबल टू बी कैंसल्ड, ही मे विदाउट अफोर्डिंग द सेड पर्सन or said person a reasonable opportunity of being heard, suspend the registration of such person with effect from the date
टू बी डिटरमाइंड बाय हिम पेंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये विदाउट, ये जो वर्ड है ना, पहले वर्ड था बिफोर अफोर्डिंग द पर्सन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब उसको सस्पेंड करना है ना अगर किसी का रजिस्ट्रेशन, तो किसी को उसको पूछने का जरूरत नहीं है, वो विदाउट अफोर्डिंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सीधा सीधा वो सस्पेंड कर सकता है। ये उन्होंने पावर देके रखा है पॉइंट नंबर सी में। आई होप यू आर क्लियर। इतना अमेंडमेंट है दोस्तों, इतना ही अमेंडमेंट है कि तू विदाउट अफोर्डिंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यू कैन सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन। एकदम क्लियर। ओके, बाद में देखते हैं और एक पॉइंट, ये नया रूल ऐड हुआ है, सी न्यू सब रूल 2A। ये दो रूल्स ऐड हुए हैं, न्यू सब रूल 2A एंड न्यू सब रूल 3A। अभी ये न्यू सब रूल 2A एग्जैक्टली बोलता क्या है? अब ये सस्पेंड क्यों करेगा? ऊपर बोला या विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तू सीधा क्या कर, तू सीधा उसका सस्पेंड कर दे रजिस्ट्रेशन। परफेक्ट है। नीचे उन्होंने एक रूल ऐड किया और रूल में ऐसे बोला है कि क्यों सस्पेंड करेगा, तो उन्होंने इधर एक चीज बोला, आई टेल यू विद द हेल्प ऑफ दिस। नाउ से फॉर एग्जांपल जुलाई का GSTR 3B फाइल करना है एंड GSTR 3B में देयर इज अ मिसमैच विद GSTR 1। एक मिनट, एकदम अच्छे से गवर्नमेंट क्या दिख रहा है? गवर्नमेंट तेरा रिटर्न्स दिख रहा है, दो रिटर्न्स, एक GSTR 1 दिख रहा है और GSTR 3B दिख रहा है। GSTR 1 talks only about outward supply, मतलब GSTR 1 का जो आउटवर्ड सप्लाई है दैट गवर्नमेंट विल चेक कितने तूने GSTR 1 में जो आउटवर्ड सप्लाई डाला है वही सेम GSTR 3 में डाला है या नहीं डाला है भाई, वो पहला होगा मैचिंग। अगर वो मैच नहीं हो रहा है, he has one reason to suspend your GSTR, suspend your registration। पॉइंट 1। पॉइंट 2 एकदम अच्छे से भाई, एकदम अच्छे से, गवर्नमेंट विल ऑल्सो मैच विथ GSTR 1 ऑफ द सप्लायर। ये नहीं समझा, अब तक फर्स्ट पॉइंट में बोला था तेरे ही GSTR 1 से तेरे ही GSTR 3B हम लोग कंपेयर करेंगे, मतलब तेरे GSTR 1 में लिखा रहेगा आउटवर्ड सप्लाई, तेरे GSTR 3B का जो आउटवर्ड सप्लाई है आई विल कंपेयर दैट। इफ इट डज नॉट मैच हम लोग एक्शन ले लेंगे। अभी क्या बोल रहा है? तेरे GSTR 3B और सप्लायर का GSTR 1, सप्लायर का GSTR 1 मतलब उसने जो आउटवर्ड सप्लाई किया है तुझे, तेरे लिए वो इनवर्ड हुआ। यस, सप्लायर का जो आउटवर्ड सप्लाई है वही तेरा इनवर्ड होना चाहिए। यस, वही वो लोग मैच कर रहे हैं, दे आर मैचिंग द सेम थिंग। GSTR 3B, वो मैंने क्या बोला था, GSTR 3B में इनवर्ड भी होता है, आउटवर्ड भी होता है। आउटवर्ड हम लोग ने मैच किया हमारा ही GSTR 1 से, जो पॉइंट नंबर 1 में आया। अभी इनवर्ड चेक करने का टाइम आ गया दोस्त, इनवर्ड चेक करने का टाइम आ गया। तूने इनवर्ड बराबर डाला है कि नहीं? तो इनवर्ड बराबर डालने के लिए मेरा GSTR 3B का इनवर्ड देखूंगा एंड जिसके लिए वो आउटवर्ड है, मतलब मेरा सप्लायर का जो आउटवर्ड है, वो दोनों एब्सोल्युटली सेम मैचिंग होना चाहिए। यस, उसके इधर 100 रखे, मेरे इधर 100 ही होना चाहिए, बिकॉज उसका आउटवर्ड है और मेरा इनवर्ड है। तो उसका GSTR 1 होगा, मेरा GSTR 3B होगा, वो मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ एक्शन ले लेंगे। अगर डिफरेंस दिखा, प्रॉपर ऑफिसर लेगा तुझे बाजू में, प्रॉपर ऑफिसर धरेगा तुझे बाजू में, एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस देन प्रॉपर ऑफिसर विल सेंड अ नोटिस वाया ईमेल, एक ईमेल से नोटिस भेजेगा और वो नोटिस का तुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए विद इन 30 डेज। और नोटिस में क्या लिखा रहेगा? अगर तूने बराबर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया then in that case he may suspend the registration। suspend बोल रहा हूँ मैं, cancel नहीं बोल रहा हूँ। suspend the registration and he will be basically he will be liable for cancellation। मतलब अगर suspend तो हो गई, बट अगर थोड़े कंडीशंस डालेंगे, अगर तूने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। ये दो चीज वो एक नोटिस में डाल के भेजेगा। पर इधर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर डिफरेंस दिखा, किसमें हम लोग ने अभी देख लिया, अगर डिफरेंस दिखा तो प्रॉपर ऑफिसर will send a notice to that person via email which needs to be responded within 30 days। और वो नोटिस में क्या लिखा रहेगा? he may suspend also and if required he can cancel also। ये तेरा अमेंडमेंट है, ये तेरा अमेंडमेंट रूल नंबर 2A में ऐड हो गया है। ये देख, कंपैरिजन ऑफ GST, कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन विथ, कंपैरिजन किसके साथ करेगा? विथ the details of outward supplies furnished in GSTR 1, मतलब मेरा GSTR 3B with GSTR 1। और दूसरा होगा
The details of inward supplies derived based on the details of the outward supplies furnished by the suppliers. मतलब उसका GSTR1 in their form GSTR1, उसका GSTR1 and मेरा GSTR3 भी करेक्ट. वो कम्युनिकेशन कैसे होगा, वाया ईमेल होगा, वो भी मैंने अभी उधर बात किया था. और ये न्यू सब रूल ऐड हुआ, सब रूल नंबर 2A. सबको समझा क्या? आई विल गिव यू दीज नोट्स ऑल्सो जो मैंने इधर लिखा है. सो तुझे बिफोर एग्जाम, बिफोर द मतलब वेन एवर यू डूइंग द प्रिपरेशन, एक बार ये नोट्स भी देख के गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड ईच एंड एवरीथिंग विच हैव रिटन इन द नोट्स. इधर इतना भी देखा तो भी सफिशिएंट है. ओके, एक नेक्स्ट सब रूल है, सब रूल 3 है. इन केस वेयर कैंसलेशन इज इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑन इट्स ओन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन हैज बीन सस्पेंडेड. कैंसलेशन इनिशिएट हो गया डिपार्टमेंट से ऑन इट्स ओन एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन हैज बीन सस्पेंडेड. सच पर्सन शैल नॉट बी ग्रांटेड एनी रिफंड अंडर सेक्शन 54 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन. एक बार सस्पेंशन हो, सस्पेंड हुआ है ना, तो तुझे रिफंड नहीं मिल सकता दोस्त. तभी तू रिफंड मांगने के लिए मत जा. क्या बेशरम आदमी, तेरा पहले सस्पेंड हुआ, सस्पेंड होने के बाद जो गोइंग टू द डिपार्टमेंट सेटिंग दैट सर मुझे रिफंड भी दे थोड़ा सा. अरे यार वो बोलेगा सस्पेंड किया मैंने तेरा, थोड़ा तो शर्म रख. बराबर है कि नहीं? वो तेरा रूल नंबर 3A में कवर हो गया. परफेक्ट. ओके, नेक्स्ट रूल पे जाते हैं. एक छोटा सा पॉइंट. Suspension of a registration shall be deemed to be revoked upon completion of proceedings by the proper officer, and such revocation shall be effective from the date on which suspension had come into effect. वापस पढ़ता हूँ. Suspension of the registration shall be deemed to be revoked, मतलब suspension revoke कभी होगा, मतलब suspension cancel कभी होगा upon completion of the proceedings. एक बार proceedings complete हुए तो तेरा suspension भी निकल जाएगा. But उन्होंने proviso क्या डाला देख, suspension of registration may be revoked by the proper officer any time during the pendency of the proceedings for cancellation if he deems fit. मतलब proper officer during the pendency of the completion of the during the pendency of the proceedings, बीच में उसको लगा कि ये suspension है, वो revoke करना चाहिए, तो वो कर सकता है. नॉर्मल प्रोविजन था, एक बार कंप्लीट हुआ प्रोसीडिंग्स उसके बाद ही कर सकता है. उन्होंने प्रोवाइजो ऐड किया. प्रोवाइजो में स्पेसिफिकली बोला कि इवन दो द प्रोसीडिंग्स आर नॉट कंप्लीटेड बट स्टिल ही कैन रिवोक द सस्पेंशन, मतलब वो सस्पेंशन निकल जाएगा. ये तेरा पॉइंट नंबर 4 में अमेंडमेंट छोटा सा था. ओके, उसके बाद है रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 30 विद रूल 23. ओके, अभी देख क्या है. आई विल टेल यू कि हम लोग ने क्या पढ़ा था पहले. ये देख, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया ना प्रॉपर ऑफिसर ने, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस है. तो मैं हाथ जोड़ के उनके सामने जा सकता हूँ, उनको बोल सकता हूँ प्लीज जो तूने कैंसिल किया ना, प्लीज वो कैंसिलेशन का ऑर्डर रिवोक कर दे, प्लीज वो कैंसिलेशन का ऑर्डर रिवोक कर दे. ये देख, मैंने हाथ जोड़ दिया उसके सामने. बराबर. तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा टू द प्रॉपर ऑफिसर विथ वैलिड रीजंस कि ये क्यों, ये जो गलतियां हुई है जिसकी वजह से तूने जो कैंसिल किया है, तो मेरी जो गलतियां हुई वो क्यों वैलिड थी, मतलब मेरे हिसाब से गलती नहीं है, पर आई नीड टू टेल दैट पर्सन कि मेरे हिसाब से क्यों गलती नहीं है. यस, आई नीड टू मेक एन एप्लीकेशन, आई नीड टू मेक अ रिक्वेस्ट टू रिवोक द कैंसिलेशन, मतलब कैंसिलेशन कैंसिल कर. ओके, तो वो मैं कभी एप्लीकेशन करता हूँ विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर. जो कैंसिलेशन ऑर्डर आया विद इन 30 डेज में प्रॉपर ऑफिसर के पास हाथ जोड़ के जाता हूँ. इफ प्रॉपर ऑफिसर एक्सेप्ट्स, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना. अगर रिजेक्ट किया तो उसको, मतलब मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, देन उसने विद इन 30 डेज ही शुड कम्युनिकेट दैट रिजेक्शन एंड ही शुड ऑल्सो गिव, बिफोर रिजेक्शन ही शुड ऑल्सो गिव शो कॉज नोटिस टू मी. मतलब क्या, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, डू यू वांट टू से एनीथिंग एल्स, ये मुझे पूछेगा शो कॉज नोटिस देके, एंड आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट शो कॉज नोटिस विद इन 7 डेज. विद इन 7 डेज आई नीड टू रिस्पॉन्ड टू दैट शो कॉज नोटिस. मतलब वापस देखते हैं, दैट पर्सन गॉट वन कैंसिलेशन ऑर्डर, cancellation of registration. After that person will send an application to the proper officer asking for revocation of the cancellation order. Perfect. Now if the proper officer accepts, no problem, very good. But if the proper officer rejects, then within 30 days he should communicate and he should also give the show cause notice to that person. मतलब और तुझे कुछ बोलना है कि मैं रिजेक्ट करने वाला हूँ, he should respond within 7 days of the receipt of the show cause notice. Okay, इधर तक हम लोग ने देखा. अभी देखते इधर लिखा क्या है. देख, where the registration of a person is cancelled suo motu,
by the proper officer, such registered person may apply for revocation of the cancellation within 30 days from the date of service of the order of cancellation. मैंने गया, मैं 30 days के अंदर गया. Now, if the proper officer is satisfied, मैंने बोला था accept करेगा, reject करेगा. अगर वो satisfied है, then he may revoke the cancellation of the registration. मतलब registration revoke कर देगा. Sorry, cancellation revoke कर देगा. Perfect. वो कभी करेगा within 30 days of the receipt of the application. Okay. मतलब इधर मैं add करता हूँ. Accept करेगा and revoke cancellation within 30 days. I hope clear है. परफेक्ट, ये तेरा पॉइंट था इधर का. अभी आते हैं वापस नीचे. सेकंड पॉइंट हुआ. थर्ड पॉइंट में अदरवाइज ही में रिजेक्ट द रिवोकेशन. एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है. हाउएवर, before rejecting the application, he has to first issue show cause notice to the applicant, who shall furnish the clarification within 7 working days of the service of the show cause notice. ये भी मैंने डिस्कस कर लिया. The proper officer shall dispose the application within 30 days of receipt of clarification. मतलब वो जो clarification आएगा उसका, वो clarification आने के बाद he can accept that clarification. मतलब हाँ perfect बोल रहा तू, तेरा जो कैंसिलेशन है वो मैंने रिवोक करना चाहिए. ही कैन एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, और ही कैन से नहीं नहीं तेरे कुछ बात में दम नहीं है, आई एम गोइंग टू कैंसिल इट ओनली. मैं तेरे रिवोकेशन एप्लीकेशन को कुछ भाव नहीं देने वाला हूँ. मतलब विद इन 30 days ही विल हैव टू टेक अ डिसीजन. ये देखना, विद इन 30 days मैं पहले प्रॉपर ऑफिसर के पास गया. ही कैन रिजेक्ट इट, बट रिजेक्ट करने के पहले विद इन 30 days उसको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा. शो कॉज नोटिस देने के बाद विद इन 7 days वो पर्सन को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा. और रिस्पॉन्स देने के बाद विद इन 30 days दैट प्रॉपर ऑफिसर विल हैव टू डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन. उसके बाद वो फाइनल डिसीजन लेगा कि एग्जैक्टली मुझे एक्सेप्ट करना है रिवोकेशन और रिजेक्ट करना है रिवोकेशन. रिवोकेशन एक्सेप्ट किया मतलब ये असेसी के लिए, सॉरी टैक्स पेयर के लिए अच्छी बात हुई. मतलब वो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देगा. बट अगर रिवोकेशन रिजेक्ट किया तो वो ऑर्डर कैंसिल्ड ही रहेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड ही रहेगा. परफेक्ट है. ओके, ये है पॉइंट नंबर 3. अभी तक अपना पॉइंट क्लियर हुआ नहीं है. ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था. अमेंडमेंट में अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है. अमेंडमेंट उन्होंने क्या बोला है देख. प्रोवाइडेड दैट सच period may on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing be extended. जो पीरियड हम लोग ने बात किया ना ऊपर 30 days 7 days, वो सब एक्सटेंड हो सकता है. It can be extended by additional commissioner or the joint commissioner as the case may be for a period not exceeding 30 days. Or commissioner or by a commissioner for a period not exceeding 30 days beyond the period specified in clause number A. मतलब ऊपर का 30 days अगर दिया है तो मैं पहले जा सकता हूं एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के पास. ही कैन गिव मी एडिशनल 30 days. वो भी मुझे सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है, देन इन दैट केस आई कैन गो टू द कमिश्नर एंड कमिश्नर से और मैं 30 days ले सकता हूँ. मतलब टोटल मेरे पास ऑलरेडी, मैं कौन ऑफिसर और मेरे पास ऑलरेडी 30 है. उसके बाद मैं एडिशनल कमिश्नर के पास जाऊंगा, प्लीज और मुझे टाइम दे दे उसका डिस्पोज ऑफ करने का है वो टैक्स पेयर का. मैं कौन हूँ, मैं टैक्स पेयर, मैं हूँ ऑफिसर, और मैं जाऊंगा 30 days लूंगा. 30 days लेने के बाद तो भी सफिशिएंट नहीं है तो मैं जाऊंगा कमिश्नर के पास एंड कमिश्नर से मैं और 30 days भी ले सकता हूँ, बट नॉट बियॉन्ड दैट. इतना ये मेरा अमेंडमेंट है, बाकी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है. तो सर इतना एक्सप्लेन क्या किया? ये भाई एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, ये एक्सप्लेन जो किया वो पहले हम लोग ने पढ़ लिया, वही मैंने थोड़ा सा रिकैप किया उसका. ओके, और अमेंडमेंट तेरा इतना ही है. ओके, नेक्स्ट है तेरा ईवे बिल का अमेंडमेंट. फटाफट देखते हैं. ईवे बिल में उन्होंने बोला है, तुझे अगर याद रहेगा ईवे बिल में कि ओवर डायमेंशनल कार्गो एंड अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ऐसे अलग अलग कुछ हम लोग ने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखे थे. तो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गोज के लिए वी हैड सीन वन रेट फॉर वन डे फॉर एवरी 100 किलोमीटर्स. 1 day फॉर एवरी 100 किलोमीटर्स उन्होंने एक लिमिट दिया था. मैं वापस जाता हूँ, तुझे दिखाता हूँ वो किधर था. ये देख, वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल.
वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल में टाइप ऑफ कन्वेंस दे क्या लेफ्ट हैंड साइड में, ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। ये है ओवर डायमेंशनल, मैं बात कर रहा हूँ अदर देन ओवर डायमेंशनल में सेकंड पॉइंट पे आ जाए। नाउ अप टू 100 किलोमीटर्स द वैलिडिटी फ्रॉम द रेलेवेंट डेट वाज 1 डे। यस, तो यही 100 किलोमीटर्स का हो गया है 200 किलोमीटर्स। फॉर अप टू 200 किलोमीटर्स एक दिन हम लोग को मिलता है। 200 किलोमीटर के लिए एक दिन, पहले 100 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलता था, अभी 200 किलोमीटर के लिए मिलेगा। यही तेरा इधर अमेंडमेंट है ई वे बिल में। सब कुछ समझा क्या? ओके, एक लास्ट दो पॉइंट्स है इन दिस ई वे बिल, एक बार पढ़ते हैं। ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर रूल 138E। मतलब रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, ये किधर दिया है सब कुछ? 138E में। मतलब कोई लोगों को ई वे बिल जनरेट ही करने नहीं मिलेगा। भाई ई वे बिल जनरेट नहीं किया, देन हाउ कैन यू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? तो ई वे बिल जनरेट करना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? तो वो कोई केसेस में ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक कर देते हैं, ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक कर देते हैं। तो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ऑफ अ पर्सन पेइंग द टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम will be blocked if he has not furnished the returns for a consecutive period of two tax periods. अगर 2 टैक्स पीरियड के लिए if you have not furnished the returns, then in that case तेरा ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगा। यही पहले था 2 months, 2 महीने का रिटर्न फाइल नहीं किया तो तेरा ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगा। ये उन्होंने बोला था, पर ये 2 months का क्या किया उन्होंने? 2 टैक्स पीरियड्स किया, एंड दिस इज योर अमेंडमेंट। ये तेरा अमेंडमेंट। ओके, ये तेरा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्दर अ न्यू क्लॉज डी हैज बीन एडेड टू रूल नंबर 138E टू ब्लॉक द ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ऑफ अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर रूल 21 पेंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है, वो अगर ऐसा पर्सन है जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है, उसका ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी विल बी ब्लॉक्ड। उसका ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी विल बी ब्लॉक, मतलब वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। ये उन्होंने पॉइंट में बोला है, एंड दीज आर योर अमेंडमेंट्स इन ई वे बिल। अब तक हम लोग ने कौन से अमेंडमेंट्स किया भाई, थोड़ा याद रख। फर्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट देखा, आफ्टर दैट वी सॉ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी वी सॉ, देन वी सॉ सॉरी देन वी सॉ ई वे बिल एंड देन वी आर सीइंग ई इनवॉइसिंग, देन वी आर सीइंग ई इनवॉइसिंग। अब ई इनवॉइसिंग का मैंने बहुत डिटेल में व्हेनेवर वी हैड अ लेक्चर, मतलब जब भी रेगुलर लेक्चर्स के टाइम पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था, बट ये एक उन्होंने एक पॉइंट डाल के रखा है, मैं बताता हूँ तुझे। एक ई इनवॉइसिंग का नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ऑन फ्रॉम 1/10/2020। जिनका टर्नओवर इज मोर देन 500 करोड़, उनको इनवॉइसिंग कैसे करना है, तो वो ई इनवॉइस रेज करना पड़ेगा उनको। अभी व्हाट इज ई इनवॉइस वो मैंने सब कुछ तभी एक्सप्लेन किया था। आई होप यू नो व्हाट इज ई इनवॉइस, दिस इज इंपॉर्टेंट। From 1/10/2020 this concept was applicable. उन्होंने बोला who's your turnover, if your turnover is more than 500 crore, then in that case you will have to generate the e-invoice. Okay, तो 1/10/2020 को ये था। बाद में immediately after 2-3 months उन्होंने चेंज करके क्या लिया, वो 500 करोड़ का लिमिट हैज बीन अमेंडेड टू 100 करोड़। 1/1/2020 को द टर्नओवर हैज बीन इंक्रीज टू 100 करोड़। इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 100 करोड़ तो तुझे इनवॉइसिंग रेज करना पड़ेगा ना। उन्होंने वापस चेंज किया और तेरे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल ये है, वेयर योर टर्नओवर इज मोर देन 50 करोड़ तुझे ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। एकदम क्लियर है? तो ये तेरा नया अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट में ये लिखा है दैट टर्नओवर इज मोर देन 50 करोड़। क्लियर है? अगर जिसका टर्नओवर 50 करोड़ के ज्यादा है उसको इनवॉइस करना पड़ेगा। एंड दिस इज योर amendment in e-invoice, right? Okay, I hope you are clear with the chapters which we discussed. First one we discussed input tax credit, second one we discussed registration, third one we discussed e-way bill, and the fourth one is your e-invoicing.